सीपा यानी कि साइबर एंड आईपी एसोसिएशन का एम है कि आईपी एंड साइबर लॉज में empower minds and enforce rights. मैं हूं आपकी होस्ट ईशा फातिमा तारड़, also the spokesperson for सीपा. हमारे आज के गेस्ट एडवोकेट हाई कोर्ट मिस्टर खलील इब्राहिम खोकर हैं. सर स्पेशलाइज करते हैं क्रिमिनल लॉज में एट खोकर लॉ एसोसिएट्स. ही इज a seasoned mooter. Currently he serves as adjudicators at numerous moots. आज हम जानेंगे सर से कि पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन कौन से लूपहोल्स मौजूद हैं, आवाम को और एक प्रैक्टिशनर को किन चैलेंजेस का सामना है और उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करते हैं. सर, let's start with a brief introduction about your academic history that led you and that motivated you to practicing criminal law. First of all, thank you, Isha, for such a clarifying introduction. With respect to my academic background, I have studied from Pakistan Air Force School and I remained there till my 10th class, and then I moved on to FC College for my intermediate. Subsequently, I had plans to choose something which would make me much more independent than I always was. So at first I had a plan to go to the army, but since due to some certain reasons I didn't move towards the army, so the next best option for me was to opt the law. Then I went on to PU to get my admission into law. However, due to strict admission criteria, I couldn't get in. The next best option once again for me was Karizm Law College, and then I moved to Karizm Law College and I remained there for 5 years. In the end, I even got medals in Punjab University. So all went good according to my plan. Very first. Right, sir. Sir, आप क्रिमिनल एज ए क्रिमिनल प्रैक्टिशनर काफ़ी अच्छे से फील्ड में हैं. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? To be very honest, मेरा शुरू से ही इरादा यही था कि क्रिमिनल लॉ को प्रैक्टिस करने. सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट आपने देखा होगा बचपन से अगर आप कोई लॉ बेस्ड मूवीज भी देखते हैं तो what you see is a person who's cross examining an individual and suddenly in a flip of finger everything just changes. So the glamour and all the glory which you could see in the movies as well was present in the criminal law and its practice. At the first, I didn't neglect the whole part of the practice because in the very beginning stage of our career, we were advised that not to look into a particular field of law. हमने तमाम प्रैक्टिस की, मतलब जो मेरी पहली फर्म थी, इनफैक्ट दैट वाज बेस्ड ऑन सिविल लॉ एंड बैंकिंग लॉ, एंड आई वाज वर्किंग इन टू फर्म्स simultaneously. So getting the exposure of civil and banking law from one particular firm, and secondly the firm where I was working at the second time, they particularly dealt in mostly criminal cases that were revolving around drug laws or anti-terrorism codes. So I had the privilege of getting the exposure from both the firms. And then after 1 year of internship at the firms, I felt like I need to start my own initiative. Because हम अपनी फील्ड में जरूर देखते हैं, एडवाइस भी ये किया जाता है कि 4-5 साल लगाए जाए किसी भी सीनियर लॉ के साथ. लेकिन अगर आपने 4-5 साल के बाद भी अपना काम शुरू करना है और फिर आपने जीरो से प्रैक्टिस शुरू करना है, then why not start your work at the earliest possible opportunity and then build it up the way you want it to be. So that was the reason that I started my own initiative and shifted my practice to it. और दूसरी बात ये कि जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि आपकी प्रैक्टिस आपका क्लाइंट करता है डिसाइड, आप नहीं डिसाइड कर सकते. फॉर इंस्टेंस खालिद राजा साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ही डिड हिज LLM इन कॉर्पोरेट लॉ. हाउएवर उनका जो नाम है जो प्रैक्टिस का या फील्ड के अंदर, दैट इज एक्चुअली इन क्रिमिनल लॉ. सो योर प्रैक्टिस इज डिसाइडेड बाय योर क्लाइंट. Fortunately, I was fortunate enough to have a clientele that was revolving around the criminal law. Then उसके बाद हमारी फर्म केसेस डील करती है डिफरेंट फैमिली लॉज भी करते हैं, ड्रग लॉज भी करते हैं, फार्मास्यूटिकल भी, इवन टू इंटरनेशनल केसेस एज वेल वेयर बाय parties are approaching each other for arbitrations. So it's multifarious in its nature. But my personal, you could say, taste of field was, criminal law. Right, sir. So criminal की practice में ऐसे कौन से major challenges हैं जिनका आपको सामना रहा है, और especially as a first generation lawyer कौन से challenges थे और आपने उनको tackle कैसे किया? Being a first generation lawyer is a challenge itself. पहली बात तो ये, because not to discourage anyone who is not a first generation lawyer,
वो ना उनका कोई उसके अंदर कसूर है कि अगर कोई किसी के वालिदैन पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं या कोई रिलेटिव उससे प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो इट इज़ वाइज ऑफ देम टू जॉइन द फील्ड रादर देन ओपनिंग एनी अदर फील्ड। मतलब अगर आपने एक चीज़ बिल्डअप कर ली है, एक एम्पायर बिल्डअप कर लिया, व्हाई वुड यू वांट टू वेस्ट ऑल ऑफ दैट एंड मूव आउट टू अनदर फील्ड। हाउएवर हमारी जो क्रिमिनल लॉ में बेसिकली जो लेकुनाज आप कह सकते हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, वो फर्स्टली तो क्लाइंट से शुरू होती है। मतलब अब आपने देखा होगा कोई भी एफआईआर जो पढ़ता है, कोई लॉ बेस्ड स्टूडेंट भी पढ़ ले या फिर कोई लेमन भी पढ़ ले, उनकी कोशिश ये होती है कि किसी को जो एक्यूज है उसको तो इंक्रिमिनेट किया जाए, लेकिन साथ ही साथ उसकी सारी फैमिली को भी इंक्रिमिनेट किया जाए। तो वहीं से जुडिशियल सिस्टम की खराबी शुरू होती है। उसके बाद हमारा एक अनफॉर्चुनेटली से कोर्ट कल्चर है, उसमें टाउट कल्चर बहुत प्रोमिनेंट। फॉर इंस्टेंस इफ अ लॉयर is asking an individual for a fees that is up to 50,000 for a case, that's for the sake of example say, but the tout does is कि वो कहेंगे उनको कि हम आप पे काम 5,000 में करवा देते हैं, और चूँकि उनके लिंक्स होते हैं वो कोर्ट स्टाफ, अगर आप जाते हैं कोर्ट तो आपको पता होगा कि कोर्ट स्टाफ में एलमन रीडर और नायब कासिम वगैरह आते हैं, तो उनको बैठे बैठे उनका काम मिल जाता है। तो इससे जो है एक तो क्रेडिबिलिटी का बड़ा गर्क हो जाता है किसी भी वकील का। अभी मोस्ट रिसेंटली अभी एक इशू चल रहा था कोर्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन से मुताबिक, तो देयर वाज अ कंटिन्यूअस कॉल आउट फॉर स्ट्राइक बाय लाहौर बार एसोसिएशन। तो व्हाट वाज हैपनिंग वाज इज के लॉयर्स तो प्रेजेंट नहीं हो रहे कोर्ट के अंदर, हाउएवर यही डाउट या मुंशी साहिबान वो प्रेजेंट होते थे, अपने सीनियर्स का वकालतनामा लेके उनको साइन करने आते हैं, वो करते हैं और उसको स्टैम्प करके पेश हो जाते हैं और अपना काम करवा लेते हैं। मतलब अगर एक बंदे ने मुझे क्यों फीस देगा या मुझे क्यों क्रेडिबल कंसिडर करेगा अगर मैं उसको एक चीज़ के 50,000 मांग रहा हूँ, उसका वो काम 3,000 करूँगा। फर्स्टली तो ये है डिलेमा। सेकेंडली द बिगेस्ट डिलेमा which again would be faced by anyone who is working as a first generation lawyer is that they would face a lot of adversity and a lot of disappointment as well. Yet again, not taking it as an excuse, but law firms are not basically paying an individual who is going there as an intern. उनकी कोशिश ये होती है या उनका जवाब ये होता है कि आई मीन हम आपको पे क्यों करें बेन आप हमसे सीखने हैं। बात ये नहीं है, मतलब अगर आप किसी भी फील्ड को देख लें, फॉर इंस्टेंस इफ यू लुक एट डॉक्टर्स, even at the stage of their house job, they are getting paid around 40,000. I mean, 40,000 is nothing, but still, if a person who has invested all of his aspirations into this particular field, and then he comes to the field and realizes that he's not going to earn nothing for the first 2 years. I mean, उसके पास यही ऑप्शन बचती है कि या तो वो किसी जगह आके क्लर्क करेगा या जॉब करेगा या CSS जुडिशरी की तरफ अपना रुख कर लेगा। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिलेमास ऑफ द फील्ड। और इसी वजह से आप देखते हैं जो 2 साल के बाद आप देखेंगे जो प्रैक्टिस कर रहे थे लोग, उनमें से काफ़ी सारे लोग जा चुके होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि 2 साल के बाद जो प्रैक्टिस करते हैं या तो उसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होती फैमिली के तौर पे, या वो अपनी पसंद से कर रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा तो आई एम क्वाइट मच सेटिस्फाइड। I know there was a period of disappointment at the early part of my career as well, or the same very disappointment which I've talked about. So, but you have to persevere at that time. Otherwise, वो किसी भी जगह पे आप चले जाएंगे वहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इसी तरह से। फील डॉन्टिंग तो बहुत है, बट आप जैसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को थ्राइव करता हुआ देखते हैं, इट्स वेरी मोटिवेशनल फॉर अस। सर प्रैक्टिकल चैलेंजेस तो बेशुमार हैं जैसे आपने न्यूमरेट भी किए, इसके अलावा कुछ एथिकल डिलेमास जो आपको फेस करने पड़ते हो ड्यूरिंग प्रैक्टिस? Actually, that again depends upon the particular situation. For instance, yesterday I was thinking about it in a manner whereby I could relate to an example of our Kaiser Muhammad Ali Jinnah. He was the greatest lawyer in my opinion in our country, so to speak. एक केस उनका भी था जिसके अंदर उन्होंने जो गाजी आलमदीन शहीद का केस था, वो उसने कन्फेस किया था बिफोर पुलिस दैट ही मर्डर्ड द इंडिविजुअल अपॉन ब्लास्फेमी, एंड कैडिज्म एट दैट टाइम वर instigating him to speak, to retract his confession in the court of law. However, he didn't back down, and subsequently the court ruled that he should be hanged to death. अब किसी की नज़र में ये एथिकल डिलेमा हो सकता है, किसी की नज़र में ये एथिकल डिलेमा नहीं हो सकता। That again, that depends upon
the viewpoint of any individual. However, for me personally, I have devised a certain set of principles for me कि इस चीज़ से step out नहीं करना. For instance, I could quote a number of examples in the cases whereby I simply rejected the fact that I am not going to take this case because it looked itself dubious. As a lawyer, it's your job to represent your client irrespective of the fact that he's guilty or not. But still, there are some certain boundaries which you are not willing to go. For instance, at this point, I would like to quote an example whereby, unfortunately, a case came to us where a father had raped his sister-in-law first and then murdered her. उसके बाद वो केस चलता रहा लेकिन फैमिलीज में आपस में सुलह हो गई, ब्लड मनी एक्सचेंज हुई एंड देन द केस वाज सबसाइडेड. उसके बावजूद उसने अपनी पहली बेटी का रेप करता रहा और उसने खुदकुशी कर ली, अपनी दूसरी बेटी का रेप करता रहा. तो एट दैट पॉइंट हिज वाइफ हैड टू इंटरवीन बिकॉज उसने देखा कि मेरी बहन के साथ भी होता रहा, मेरी बड़ी बेटी के साथ भी, छोटी बेटी के साथ भी. ही वाज कन्विक्टेड एंड ही वांटेड अस टू फाइल एन अपील बिफोर हाई कोर्ट. I had initially, keeping up the viewpoint that I had to represent her irrespective of the fact that he's guilty or not, took up the file. I studied it, and then I even got the loopholes out of it, which would eventually, if not reduce the sentence, then it would allow him to have an appeal in the High Court. But still, something in me at that time told me that there is a moral person inside you, and this is not the place you want to go. In the guise of being a lawyer, there are certain places you don't want to go at times. So I refused, and they were telling us to ask for a price, and they were willing to pay for it. But still, however, we refused the file. अच्छा, कुछ वकील इसको एक समझ लें एक्सक्यूज भी यूज करते हैं कि अगर हम नहीं लेंगे तो फिर दूसरा वाला वकील नहीं लेगा. तो अगर कोई दूसरा वकील ले भी लेगा तो आपका क्या नुकसान है? मतलब आप खुद तो जाके सुकून की नींद सोएंगे कि यार मैंने ये वाला काम नहीं किया. पहले मैं एंटी टेररिज्म कोर्ट के भी केसेस करता था, मतलब पर्टिकुलरली पीपल हु वर इन्वॉल्वड इन टेररिज्म एक्टिविटीज, एंड आई सब्सिक्वेंटली डिसाइडेड दैट इट्स नॉट अ प्लेस येट अगेन वेयर आई वांट टू गो. क्योंकि अगर आपने किसी दहशतगर्द को बचा लिया बाय एनी चांस, व्हिच हैपेंड इन माय लॉ करियर एट नंबर ऑफ टाइम्स, उसने करना वही है जो उसने पहले जाकर किया. तो फिर अब आप इस चीज़ को मद्देनजर रखेंगे कि मैंने सिर्फ उसको रिप्रेजेंटेशन देनी है, अगर वो गिल्टी है या नहीं है, इस चीज़ को मद्देनजर रखेंगे कि इसने किया क्या है और ये करेगा क्या आगे जाकर. तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनका नजर आ रहा होता है वो द फेस ऑफ इट. आई पर्सनली डोंट डू दैट. It's my personal choice. Any lawyer can think of himself whatever or however he wants it to be. But it's my personal choice that I'm not going to take any such cases whereby I see that there is a slight possibility whereby such a person would repeat the offense. I don't entertain that. So, in cases where luckily you do get clients who are not habitual offenders, who you believe do not be guilty, in that case, आम circumstances में आपकी defense strategy की approach क्या होती है? I personally inspired my inspiration from my senior at the time where I was working during my internship days. He used to have a performer whereby he would notify each and every fact of the particular case, the statements of the witnesses, the time of the FIR. There are certain columns in the FIR. So even a distinction between the two would eventually help the case of the accused. So you would note down each and every integrity of the particular case. I will give you, when you guys leave, I will give you that copy of the perform as well, so you can utilize that in your practice. So simply, as a defense lawyer, it's your job to find out any loopholes, because it's very famous saying of the law that accused the favorite child. So thereby, if any discrepancy we see, हम अपने clients को ये भी कहते हैं, मतलब एक कोर्ट फाइल होती है और आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, एक पुलिस फाइल होती है. पुलिस फाइल इज इन कस्टडी ऑफ द पुलिस. Yet again, it might be unethical in someone's view, but still we have to say it to our client that get that police file by steal, by borrow or steal, whatever you wanted. I know. So
हम उनको कहते हैं कि आप ये लेके हैं, और उसके अंदर सारी उसकी तफ्तीश होती है पुलिस वालों की, whatever they are doing at the time, or any other loophole which you can find. So all of that accumulating into a defense. तो इस वजह से हमारा एक्विटल रेट ज़्यादा भी है, क्योंकि वो पुलिस फाइल निकल आती है जो कि नहीं निकलनी चाहिए, और यू वुड बी सरप्राइज्ड कि मतलब कितने कम पैसों में निकल आती है। तो सब कुछ ये बेनिफिट करते हैं हमें, और फिर हम उसको जैसे डिफेंस वगैरह भी करते हैं। हम हमारे साथ एक एग्जांपल ये करते थे कि इट्स द जॉब ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू बिल्ड अप अ वॉल, एंड इट्स द जॉब ऑफ द डिफेंस लॉयर टू जस्ट टेक अ ब्रेक आउट ऑफ इट। तो उसका फायदा होता है। An example, but yet again I would like to quote if you wanted to listen. There was a case whereby एक शख्स से रिंग रोड पे सीटीडी ने, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने उसको अरेस्ट किया, और उसकी गाड़ी में से आप सोच नहीं सकते क्या क्या निकला, मॉर्टेड वाले ग्रेनेड्स, क्लाशनिकोव्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नेम इट एंड ही हैड इट। तो my senior told me to prepare for this case because he had no hopes for it. So हमारा यही होता है कि अगर कोई इसके ऊपर फ्यूचर नजर नहीं आ रहा तो हम जूनियर्स को भेज देते हैं कि अगर कोई बेइज्जती होगी जज से तो इसकी होगी, हमारी तो नहीं होगी। He sat down, और उसकी बेल रिजेक्ट हो चुकी थी नीचे वाले कोर्ट से, और हाई कोर्ट में उसकी बेल थी। सीटीडी की पहले तो हम जिस भी थाने में जाते हैं सीटीडी की जहाँ से कंसर्न थाना था, तो वो एंटर ही नहीं होने देते, कहते हैं कि दिस इज अ सेंसिटिव प्लेस एंड यू कैन नॉट एंटर विदाउट हैविंग अ प्रायर परमिशन। हाउएवर व्हाट हैपेंड वाज कि हमने, आपको पता है हमारा कोर्ट कल्चर ये है, हमने किसी तरह कॉपी अरेंज कर दी जो कि हमारा हक था। अब यहाँ पे पुलिस की भी गलती है। अब आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा लॉ में भी कि द कॉपी ऑफ एफआईआर इज टू बी गिवन टू द एक्यूज्ड। Even if a person is in preventive detention, he has to be told the reasons for his preventive detention. तो उन्होंने नहीं दी, हमने निकलवा ली। अच्छा, उसके अंदर इतनी बड़ी वो थी मिस्टेक बाय द पुलिस, कॉलम होते हैं उसके अंदर लिखा होता है एफआईआर का रिपोर्टिंग टाइम क्या है। एफआईआर के जो तफसील लिखी थी उसमें ये लिखा हुआ था कि हमने किसी की इतला पे, किसी गवाह खास की इतला पे हमने सोचा कि छापा मारते हैं सीटीडी का रिंग रोड के ऊपर, और ये बंदा इस वक्त गुजरेगा यहाँ से तो इसके पास ये मौजूद है। अच्छा, रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है फर्ज किया 12 बजे, और जब एफआईआर दी हुई थी वो दी हुई थी एक दिन पुरानी। मतलब आप सोचो इतनी बड़ी मिस्टेक थी कि रिपोर्ट जिस दिन हो रहा है उससे एक दिन पहले की एफआईआर कटी हुई। तो ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी किस तरह हो सकती है। I actually I had no other appropriate remedy at the time while researching for that case. मैंने दुनिया जान की चीजें निकाल मारी लेकिन कुछ नहीं कर पाया। पर मैंने ये पॉइंट आउट किया, मेरा my senior was actually laughing at me. मतलब he told me that this might be considered as a clerical error. तो at that time he didn't use it, और उसकी हाई कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हो गई। In the meanwhile जब उसका एंटी-टेररिज्म कोर्ट में ट्रायल चला, तो long story short, when he got his acquittal, तो उसके एक्विटल ऑर्डर में एक रीजन ये भी लिखी हुई थी कि there is a certain discrepancy in the FIR whereby the report time is such and such and the FIR number is prior to the report time and is a day earlier। मैं सबको का सब पहले मान लेते हैं तो इतनी ना मिनट करनी पड़ती। Ladies and gentlemen, confessions of a defense lawyer. We'll hear more on that, sir. Can you cite any कोई ऐसा आपका केस जो बहुत सिग्निफिकेंट रहा आपके करियर में, या फिर कोई ऐसा लीगल प्रेसिडेंट that has been upheld जो कि आपके करियर में उसने बहुत सिग्निफिकेंट चेंज लाया? From the days of my law college, there is a case whereby this citation is PLD 1995 Supreme Court 34 Tariq Bashir case. I don't know if you are familiar with it. It's a case that is landmark in its nature and is relied upon in each and every bail petition. I mean, it devises all of the criteria of the bail, how a bail is filed, at the time, which time it's filed, upon what grounds it is to be accepted, and upon what grounds it should be rejected. And I encourage every law student who is, even looking to read out a bail petition, he must also, utilize that particular case for his reading experience at least. So in the long run, it would be fruitful for him. An example of a case which was tough for me, it was tough for me for various reasons. For example, those are
बीच में गालिब कोरोना आया था, हम्म, 2019 में था या 2020 में था। 20 के start में। So it was 2020 and I was the student of part 4 at the time and I just did my chess at the time. And कोरोना का बीच में आना, उसका मसला ये हुआ कि हमारे पेपर्स भी एक्सटेंड हो गए और मेरे सीनियर है इज़्ज़त फराज अली खान साहब, he used to practice at the time, he was a graduate. He used to ask me यार मेरे साथ प्रैक्टिस करने चलो तुम, अगर तुम घर ही बैठे हो। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। At that time we faced a case together whereby yet again an example of a terrorist. It was challenging for two particular reasons. One, he was a terrorist. Secondly, the number of the courts were already limited because of the corona extreme circumstances. होता ये था कि जिस भी कोर्ट के पास बेल पिटिशन जाती थी, उनको फ़ोन आ जाता था कि आप अगर आपने बेल पिटिशन के हक में ना डिसाइड की तो हमें पता है कि आपके बच्चे किस स्कूल में हाथ करते हैं। इसके साथ मैं आपको एक और भी मजे की बात बताऊंगा देवरी में। तो होता ये था कि कोई भी जज होता था वो 2-3 दिन रखता था अपने पास बेल पिटिशन, उसके बाद सेशंस जज को रेफर कर देता था कि मैं नहीं सुन सकता फॉर सम पर्सनल रीजंस तो काइंडली टू ट्रांसफर इट। अब यही होता रहा, मतलब 2 महीने गुजर गए इसके अंदर। हम कभी मॉडल टाउन जाएं, कभी हम जिला कचहरी जाएं, कभी हम कहाँ जाएं, कभी कहाँ जाएं। तो फिर उसके बाद हमने एक दिन सेशंस जज में थे, फारूक नाम था जज का, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया सर कि आप भले इसको रिजेक्ट कर दें पर इसका फैसला करें आप, बड़ी मेहरबानी। उसने कहा मैं आपसे वादा करता हूँ इसका फैसला जरूर होगा। हाउएवर बेल वाज रिजेक्टेड एंड ड्यूली, बंदा था अभी ऐसा, लेकिन वो इन सर्कमस्टांसेस की वजह से इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग। मतलब हमारे सीनियर में कहते थे आज इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, और फिर सीटीडी का भी प्रेशर था जजेस के ऊपर कि नहीं आपने नहीं छोड़ना इसके ऊपर बिकॉज वी हैव सफिशिएंट क्रिमिनल अगेंस्ट। अच्छा, इस तरह का एक और वाकया कि एक दफ़ा मतलब आई डू जेल ट्रायल्स एज वेल। जेल ट्रायल में ये होता है कि अगर आप जैसे कोर्ट लगभग जेल है तो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कमरा बना होता है, उसके अंदर जेल का एक ड्यूरी भी होती है जिसके अंदर आगे प्रिजनर को रखा जाता है, तो उसके आगे केस आगे किए जाते हैं मजिस्ट्रेट के आगे, क्योंकि वो हार्ड क्रिमिनल्स होते हैं। तो अगर फॉर इंस्टेंस अगर केस में अगर 300 का केस है उसके साथ एक एडिशनल लगी हुई है 13-20 पैंट इज रिगार्डिंग दे, मतलब आपके पास अगर इलीगल असला हो तो फिर उसके ऊपर लगती है। तो फोन आता है +1 के नंबर से, तो +1 का नंबर आपको पता है यूएसए का नंबर है। अच्छा, फोन आता है तो पाकिस्तानी आवाज आती है कैसे, तो कहते हैं कि जी अच्छा आप फलाने एडवोकेट साहब बात करें। कहा जी फलाने एडवोकेट साहब। उन्होंने कहा आपको एक बंदा सिम देगा, आपने वो सिम सिर्फ लेके आनी है और सारे जो केस होंगे हमारे हम आपको देंगे और आपको पैसे भी ठीक ठाक देंगे। अच्छा, वो सिम लेके कहाँ जा रही थी, वो सिम लेके जानी थी कोट लखपत जेल, और फोन कहाँ से आ रहा है, कोट लखपत जेल से। मतलब a prisoner who was sitting inside Koट लखपत jail had such a technology whereby he used +1 number, a number that was coming out of USA, और वहाँ का नंबर यूज करके वो पाकिस्तान में बैठ के कह रहा था कि मुझे आप बस मेरी इतनी सी हेल्प कर दें, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं आपसे। हाँ मतलब ऐसे ही कोई शायद। आपका मतलब लॉ स्कूल डेज से ही आपका करियर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। अल्लाह का शुक्र है कह सकते हैं। मतलब आई हैड इंटरेस्ट इन प्रैक्टिस। मुझे मतलब मेरे वाले साहब भी कहते थे कि अगर आपने करना है तो आप पार्ट 1 से पढ़ी शुरू करें, बट येट अगेन दैट moral and ethical consideration whereby I felt like I am not even a student of law। और पहले 3 साल आपको पता है कि लॉ पढ़ते ही नहीं है, मतलब तीसरे साल से शुरू होता है लॉ पीपीसी वगैरह, एटलीस्ट इन एनुअल सिस्टम। तो आई हैड दिस moral and ethical consideration whereby I felt like तो जब मैंने पार्ट 3 में पढ़ना शुरू कर दिया लॉ पीपीसी वगैरह, तो एटलीस्ट इन माय ओन ओपिनियन मुझे लगता था कि अब मुझे कुछ समझ तो आएगी। मतलब ये क्या बात हुई, अब ये कोर्ट कल्चर में ये भी होता है कि मतलब जिस तरह के जो फ्रेशर्स होते हैं पार्ट 1 के बच्चे कोर्ट में आ जाते हैं और फिर वो यूटिलाइज किए जाते हैं उन लोगों से जो कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन से, मतलब उनसे वो खड़े होकर नारे लगवाएंगे। आप सुबह किसी वक्त 8 बजे कोर्ट चले जाएं, आपको वो सारे बच्चे कोर्ट के दरवाजे से अदालतों तक सलाम करते हुए और आपसे ऐसे मिलेंगे जैसे आप सारी ज़िंदगी जानते हैं और कार्ड देंगे सर इनको वोट देना इनको वोट देना। तो अगर आपने
मतलब इतना टाइम और पैसे इन्वेस्ट करके पढ़ना है और फिर अगर आप ये काम कर रहे हो देयर इज नो पॉइंट इन इट। पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 से मैं लॉ शुरू इसलिए किया बिकॉज आई हैड सम नॉलेज ऑफ लॉ एट दैट टाइम एंड आई कुड अंडरस्टैंड कि यार ये किस तरह हो सकता है, क्या मतलब इसका पॉसिबल आउटकम क्या है। सर बिफोर कंक्लूडिंग कुछ फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए कुछ जब बात चाहिए होंगे फर्स्टली कि मूटिंग कितनी ज़रूरी है लॉ स्टूडेंट के लिए अपने करियर में जाने। So, if I attribute any of my success to anything, it would be moving. It would not be even academic. I mean, I was not a good student at all, but the way I used to tackle the situations in academic career was because of the things that I done in there are some certain factors there's some certain factors because of which moving is such an effective tool to use. For instance, I always quote this example that mooting is the most difficult form of public speaking because at the debates, if you say so, debates में आपने कुछ याद किया, आपने जाके स्टेज पे बोल दिया, ना आपको कोई सवाल ना कुछ। mooting से आपको कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, very photo and उस वक्त अपनी मैं उसको काबू करना और उसको improvise करना। So the biggest thing that I got from mooting was improvisation. Secondly, as we all were law students at one point, so it was important for us to recognize how law actually works. mooting का फायदा ये है कि मतलब अगर आपने किसी competition में participate किया है तो I'm sure every mooter must be familiar with this that they have to prepare both the sides, responses and petitions. But in real life, this is not the case. However, what it does is, or how it enables you is to think what the other party would be thinking at that time. I mean, if I being a defense lawyer has the case, मैंने चूंकि mooting की हुई तो मुझे पता हुआ कि या मैं anticipate कर सकता हूँ कि what would be the counter stance of the other party. और फिर मुझे ये भी पता है कि मैंने उस counter stance के मुताबिक research कैसे करनी है। तो जब mooting के अंदर in a very limited time आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं और आपने इस प्रेशर सिचुएशन में काम करना होता है तो आप उससे काफ़ी चीज़ें सीख के निकलते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि mooting का अब तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हम चूँकि इंटरनल लॉ के बच्चे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी डिग्री की है, तो द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल वी हैड फॉर गोइंग टू LLM और बार लॉ वाज टू हैव कन्वर्जन कोर्स फॉर अ ईयर। जब और फिर स्कॉलरशिप्स के लिए कंटेंट करना है आपने तो पंजाब यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि 4 GPA नहीं आ सकता, एटलीस्ट एनुअल में नहीं आ सकता। तो एनुअल अब जैसे मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया पार्ट 4 5 में, तो जो टोटल मेरी परसेंटेज बनी दैट वाज 63%। और आप ये एक्सक्यूज किसी को सुना ही नहीं सकते। मतलब अगर आप किसी नेशनल यूनिवर्सिटी पर जा रहे हो उसको कहोगे यार आप मेरा 63% वो कहते हैं CGPA में कन्वर्ट करके लाए तो मेरा CGPA 2.5 बनता। हाउ वुड आई कंटेंट फॉर स्कॉलरशिप? I would only can contend for scholarships when I have any such extracurricular activities on my CV. और वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने किया है देर टाइम और अच्छे उस्ताद मिल गए उस वक्त, क्योंकि हमारा mooting में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन अच्छे उस्ताद की और हमें मेहनत है कि उन्होंने हम पे की है और उसके लिए मैं क़यामत जो है तो मशहूर होऊंगा। तो mooting में दूसरा आप भी हमारे उस्ताद रहे हैं। We have been victims at your hand. ये आपकी ज़रा नवाज़ी है वैसे। Sir, just one word or like a tip for fresh graduates or law students. Books are your best friend. Don't be discouraged by daily practice, especially if you are a first generation lawyer. Read as much as you can. Novels नहीं पढ़ने का कहना, पढ़ें उसको भी free time में पढ़ें, but be aware of the latest amendments in the law. Be aware of the latest legal precedents that are coming in the courts. The only way you can survive in this field is to have the knowledge, and not only knowledge. One thing I would advise the youngsters upcoming in the field as well is to build their networking. I mean, no person can suffice in any field if he only has the talent and doesn't has the the place where he can actually exercise that particular talent. For instance, अगर मैं वकील जितना मर्जी अच्छा होगा मेरे पास केस आएगा तो मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास केस नहीं आएगा तो मैं भले सारी उम्र बैठ के कहता हूँ मैं बहुत ही अच्छा वकील हूँ। सारे कहेंगे अगर आप अच्छे वकील होते तो आप नजर आ रहे होते आप कहाँ पे। तो अपनी नेटवर्किंग बिल्ड करें, एक अच्छा सीनियर भी ढूंढें
मतलब और कम्प्लीटली इसके ऊपर रिलाई ना करें, मतलब क्योंकि वो होता ही है कि it's a very unfortunate thing to say, however हमारे फील्ड का dilemma ये है कि as long as you are useful to that particular senior you would be very happy for it. अगर आप उसको लग रहा है कि किसी तरीके से ऊपर जा रहे हैं, कुछ सीनियर्स अच्छे होते हैं, मतलब अगर मेरे पास कोई मेरा जूनियर केस लेके आता तो मैं ये नहीं कहता कि यार इसमें इसके बाद केस आ रहा है मेरे पास, मैं कहता हूँ do whatever you want, get whatever amount of fees you want, कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से। बिकॉज मुझे एक ये भी लगता है जैसे अब कोई मोटर आता है किसी भी कॉलेज से आता है तो मैं उसको कोशिश होती है मेरी कि मैं उसको जितना समझा सकूँ, इसलिए मेरी कोशिश ये है विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड द डिलेमास एंड प्रॉब्लम्स आई फेस कम से कम लोगों को जो मेरे से रिलेटेड है उनको फेस करें। Thank you so much, sir. It's been such a pleasure talking with you. आपने एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर की जिंदगी और करियर में इतनी इंट्रिकेसीज हमें बताई हैं कि आई होप काफ़ी सारे लॉ स्टूडेंट्स इंट्रीग हुए होंगे टू प्रैक्टिस इन द क्रिमिनल फील्ड। थैंक यू सो मच, सर। You're welcome.